few other students to No join. problem, no problem. How many people are there in this group? Sir, Kabir, would you Close to be 45, sir. Close to 45, sir. Close to 45. the students who are delegates in the committee are about 34, sir. And then adding, They are member of the National Board of Wildlife. they are members of National Board for Wildlife, sir. Of the Chhatr Paryavaran Of Sansad. the Chhatr Paryavaran, sir. Very interesting, eh? Sir, sir. Very good. Eh? Kabir is a very promising young lawyer, sir, from the High Court. Very good. Yeah, yeah. And he is in charge of this committee. And From last month, I am not member of the committee. New board is sir, constituted. now, you Yeah, new board has come. sir. So I serve for 12 years. It's a too long period. It's a very long period. Kabir, I think the moment we hit about 25, we can start. Because Yes, sir. about 32 students are there in this committee. And The then we can- 21 is the current number, I believe. already joined, 21, 22. Yes. Just we'll wait. So the program will start with introduction or my speech? Sir, Kabir will introduce A brief introduction will be a there, sir. very brief introduction, and then the pattern would be Kabir. Please go ahead. Sir, after you give us the basic insights about your expertise, there shall be an engagement session where Anshuman sir shall be putting questions that would be beneficial for the students, and then in a manner which would probably be easy for them to understand, would be the format where we would request you to answer those questions. Okay. And thereafter, after sir is done with all the questions, which should be around 14 to 15, then the students will in the meantime be noting down all their queries, and after that their students will have their own questions, sir. So I may take how many minutes? Sir, depends upon how much time you have, sir. It will always be a pleasure, but it's about 40 minutes, sir, that we would request that program is 40. the total session should be about 40 minutes. After discussion with you, I prepare just a few slides. Very happy. Would you want to share those slides, sir? Would you want to share? I will use those. In that case, I will speak. Very well, sir. Very well. Kabir, I think Sir, another yes, sir. minute or two. You can, we wait for 60 seconds and then you can start. Right? Yes, sir. Okay, fine, no problem. Wildlife conservation has become a very serious issue. Sir. Very serious. And you are seeing that from inside, sir. So we want our children to No, get no, in inside. there is a question about the integrity of the National Board of Wildlife. A question is valid also to some extent. I Sir. agree. Sir. Being member of the board and standing committee, I agree. सर और सर मेरी समझ से अगर हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे और नहीं अच्छा हमारे यहाँ सारे बच्चे हिंदी बहुत अच्छी समझते हैं सर मैं उम्मीद है मैं बच्चों से बिना पूछे बोल रहा हूँ आई होप आई एम राइट तो मैं इंग्लिश अच्छा रहेगा कि हिंदी अच्छा रहेगा? हिंदी भी अच्छा रहेगा सर कोई वो नहीं अच्छा सर चलिए ठीक है कोई बात अभी रिक्वेस्ट कबीर the children should put on their camera first, please. Let our respected mentor also see you. Kabir, I think you can go ahead, please. Sir. Welcome everyone in today's session, online session for the Chhatr Paryavaran Sansad. Today we have our distinguished guest and speaker, Dr. H.S. Singh, who is a former Indian Forest Service officer of the Gujarat cadre. Sir has served as the Principal Chief Conservator of Forest Gujarat. Sir is a renowned lion conversationist specializing in species introduction and revival programs. Sir has served as a prominent member of Standing Committee of the National Board for Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Today we are privileged to have Sir's company. Anshuman Sir shall be requesting Sir to share his insights on brief broad topics which concern our committee. And thereafter, based on Sir's answers to those queries,
I request everyone to make notes, which will also be beneficial in making your presentations in future. Thereafter, after this question answer session is over, if anyone has any doubt which is pertinent in nature, everyone can go ahead and answer one by one. But I will request everyone to put their mic on mute, but cameras must be open as it is an engaging session. And now over to you, Anshuman sir. Thank you so much, Kabir. Sir, yeah, if you can just start with your part first, which you would want to tell the children about, and then I will, sir, I have a few questions to help the children, sir, understand the nuances of the National Board for Wildlife, what is its role and other aspects, sir. Thank you very much. I'm very happy to see young people so much interested in the wildlife. I serve a long period in Gujarat state, especially lion. First management plan I prepare, and I also prepare extension plan of the lion. You know, when I was CF, lion population was 300 plus. And we never imagined that number will increase almost 4 times. We have more than 1,000 lions. They are in entire Saurashtra region. I will use some of the slides for presentation. Now I will explain procedure. I think it's okay. It's a visual, no? Presently, sir, it is not visible, sir, to us. Not visible. I think I have sent a copy to Kabir. He can display. Kabir, can you just upload that, please? Kabir, you are on mute right now. I'll just send it, sir, because laptop access is something I don't have right now. Okay, I will speak one by one. Just 1 second, sir. I'll just try to do it. Ashish, if Ashish is there, Ashish will be able to share it. Yes, sir. Please do that. So, under Wildlife Protection Act 1972, for considering any project proposal within a protected area or ecological sensitive zone, there are institutions like National Board for Wildlife. Within National Board for Wildlife, Standing Committee of the National Board of Wildlife. Actually, National Board of Wildlife is chaired by Prime Minister, and there are a large number of people involved in it. But meeting normally is organized after many years. So there is. मेरा एक आग्रह रहेगा सर, जो चूंकि बच्चे हमारे स्कूल के हैं तो प्रोटेक्टेड एरिया एकदम से नहीं समझते हैं सर. तो अगर आप वहाँ there is slide to explain them. Sir. There is slide to explain them. Sir. So there is a standing committee, and at present situation, standing committee normally look after entire affair of the National Board of Wildlife, because power is delegated to National Committee of the National, standing committee of the National Board of Wildlife. That is institution. Now, after amendment, the State Board of Wildlife, that is also created. These are institutions which, normally process the proposal. Now, see here, what is a protected area? It's a legal definition as given in the Wildlife Act. There are national parks. They are strictly protected. There is no human interference, and 100% area is for the wildlife. Wildlife sanctuary is also very close to national park, but sometimes some rights like passage of the people, some grazing rights, they are considered in the sanctuary area. And there are only 2 categories of the protected area. Recently, after 2003, 2 more categories: conservation reserve and community reserve. They are added, and total we have. For last year, end of the last year, we have 1,134 protected area, or 4 categories. Internationally, we have 6 categories of protected area, but in India, we have only 4 categories of protected area: national park, wildlife sanctuary, conservation reserve, community reserve. Conservation reserve, community reserve, they are different because they are used on sustainable basis, where in same area, people and wildlife both can use area in sustainable manner. So they are different from the national park and wildlife sanctuary. There is no strict protection in this area.
and there is no buffer zone for community reserve and conservation reserve. Now, there is a provision under this Environmental Protection Act 1986 eco-sensitive zone. Because ecological sensitive zones were not created, then Supreme Court decided that create ecological sensitive zone all around the protected area until the ecological sensitive zone that we call ESZ not created. A 10-kilometer condition is imposed by Supreme Court. So we have for 40% of the protected area, National Park and Wildlife Sanctuary, we have ecological sensitive zone. For rest of the area, they are under preparation or they are still not prepared. So this is condition. Could I clear this? Is it clear to everybody what is protected? Sir, actually, the children perhaps are not aware of eco-sensitive zones. Okay. तो एक बार आप थोड़ा समझा देंगे सर कि इको सेंसिटिव जोन प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड कैसे होता है सर? ओके, ये जोन ऐसा होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ जो कि प्रोटेक्टेड एरिया को किसी तरह इम्पैक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया के वाइल्ड लाइफ भी उसको यूज करते हैं या उनके मूवमेंट के लिए या उनके माइग्रेशन के कॉरिडोर में आते हैं, ऐसे एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में कंसीडर करके उसकी मैप बनाया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 40% प्रोटेक्टेड एरिया की इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन नोटिफाई हो गए हैं, जिसके नोटिफाई नहीं हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क और सेंचुरी इज कंसीडर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं बफर जोन। बफर जोन नॉर्मली टाइगर रिजर्व में यूज होता है, लेकिन अगर हम लिटरेचर यूज करें तो हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल, हम यहाँ इस जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है वो 2 ही कैटेगरी में आता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के चारों तरफ नहीं बनाया जाता है। और जो हमने बताया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ जो है डिपेंड कितना बड़ा, कहीं किसी में 4 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं कहीं तो 100 मीटर है, कहीं कहीं तो 0 ही बना दिया है जो प्रपोजल है अंडर प्रेशर ऑफ दी डेवलपमेंट। सो हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो नेशनल पार्क और सेंचुरी के चारों तरफ ऐसे एरिया जिसको वाइल्ड लाइफ किसी न किसी ढंग से यूज हो रहे हैं, चाहे मूवमेंट के लिए हो या फूड के लिए हो या माइग्रेशन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, वन प्रोटेक्टेड एरिया टू दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में जो माइग्रेशन का पाथ होता है, इसको कंसीडर करके हम इको-सेंसिटिव जोन और इको-सेंसिटिव जोन कहते हैं। इज इट क्लियर? But have you followed, children? If you have any questions, you can ask. That sir is trying to tell you कि नेशनल पार्क के चारों ओर एक बफर एरिया, एक कुशन बनाया जाता है जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन डायरेक्टली नेशनल पार्क में इंटरफेयर ना करे या उस एरिया में डेवलपमेंट को हम रेगुलेट कर सके, उसको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। यू हैव और कुछ आपको पूछना तो आप प्लीज सर से पूछें। हाँ, उस एरिया में जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं उसमें तीन कैटेगरी होते हैं। एक तो कुछ एक्टिविटी टोटली प्रोहिबिटेड होते हैं, जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है या बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है, ये एक्टिविटी माइनिंग है, ये तो रेगुलेटेड भी नहीं होते हैं, टोटली प्रोहिबिटेड होते हैं। कुछ एरिया होते हैं जो एक्टिविटीज होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो, हाईवे है, कैनाल हो, इस तरह की एक्टिविटी जो है वो रेगुलेटेड है, जिसका परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन कुछ का परमिशन नहीं दिया जा सकता है, ऐसा भी है। और चौथा होता है कि प्रमोटेड, मतलब कुछ ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज किए जाएं जिससे कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम किया जाए और उस डेवलपमेंट से जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों को फायदा हो। तो वो 3 एक्टिविटीज जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिफाइंड है। Okay, could I clear it? Yes, sir. Give your thumbs up, please. If you understand, give your thumbs up. When sir is asking a question, please give your thumbs up. सर बच्चे म्यूट पर है तो बस थम्स अप से बता देंगे कि आपकी बात समझ गए सर। Okay, thank you. अब जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सेंचुरी नेशनल पार्क है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में भी जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेगुलेट होते हैं,
तो अगर इसको आप देखेंगे तो रोड, हाईवेज, रेलवे लाइन, कैनाल, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, इसमें रूरल जो रोड होते हैं, गांव के सड़कें होती हैं, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 4 प्रकार के जो इंफ्रा लीनियर प्रोजेक्ट होते हैं। और कम्युनिकेशन लाइन, ये भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, जैसे टेलीफोन का लाइन है या जो फाइबर केबल होते हैं, इसका पावर डेलीगेट कर दिया गया है स्टेट बोर्ड को, इसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पावर जो है स्टेट बोर्ड को दे दिया है, तो ये प्रपोजल नहीं आते हैं। लेकिन ये 4 प्रकार के जो प्रपोजल होते हैं, और रूरल ट्रांसमिशन लाइन जो 11 kV का हो जो जिसको गांव में यूज करते हैं, वो भी प्रपोजल नहीं आते हैं। लेकिन हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, उसका प्रपोजल जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को आएगा और उसको क्लियरेंस के। तो 4 प्रकार के जो लीनियर प्रोजेक्ट हैं, जो इम्पैक्टिंग प्रोजेक्ट है, उसका प्रपोजल जो है वो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में कंसिडरेशन के लिए आएगा। सर एक बार ये बस बता दें कि लीनियर क्यों कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक समझ रहे हैं हम लोग की रोड, हाईवे, रेलवे सब हैं, बट व्हाई इज इट कॉल्ड लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर? लीनियर इसलिए है कि इसकी स्किप कम होती है और लंबे होते हैं, कई किलोमीटर तक जाते हैं, इसी को लीनियर बोलते हैं। इसकी विड्थ ज्यादा नहीं होती है, बहुत ज्यादा विड्थ होगी कि आप समझिए 100 मीटर तक जा सकता है, और इसकी लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं। इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट होती है और उसकी चौड़ाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इससे इसको लीनियर कहते हैं। लंबाई में होने के कारण इसको लीनियर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो 4 जो है, जो हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, कैनाल हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आ रही हैं तो ऐसे आ रही, इतना डेंजरस है कि 7 kV को लोग कहते हैं। मैं तो एक कच्छ में मीटिंग कर रहा था, तो वहां के एमएलए ने कहा कि 7 kV ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरो तो सर का बाल खड़ा हो जाता है। तो सोचिए उसका इम्पैक्ट ब्रेन और ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन पर कितना पड़ता होगा, हम कह नहीं सकते हैं। तो और आजकल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से जो बर्ड की डेथ हो रही है, वो जो है नंबर बहुत ज्यादा है। तो इसको ये जो है आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है क्लियरेंस। सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे तो बहुत काम हुआ गुजरात में। हाँ, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा बच्चों को एक स्लाइड लास्ट में है, मैं वहां पर आऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज, ठीक है ना? ओके, तो अब आप देखिए जो लीनियर प्रोजेक्ट के अप्रूव पहले क्या, जब हम नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में थे 14 और 15 में, तो 15 में एक डिसीजन लिया गया भाई कि जितने भी लीनियर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जो भी इंडस्ट्री वाले या सरकार प्रोजेक्ट बनाती है, उसके लिए गाइडलाइन, मिटिगेशन गाइडलाइन बनाया जाए। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के कुछ और साइंटिस्ट मिलकर के एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट बनाया कि ये मिटिगेशन प्लान के साथ ही प्रपोजल आएगा, तभी कंसीडर किया जाएगा, तभी बोर्ड का अप्रूवल दिया जाएगा। तो उस गाइडलाइन के कारण, क्योंकि गाइडलाइन जो ऐसा बनाया गया उसमें पैसेज प्लान होना बहुत जरूरी है। पैसेज प्लान जो है 1 या 2 किलोमीटर होना चाहिए। पैसेज प्लान एनिमल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर एलिफेंट का एरिया है तो मिनिमम हाइट जो है पैसेज का जो ब्रिज बनाया जाएगा 15 मीटर उसकी चौड़ाई हो, 5 से 6 मीटर हाइट हो, तो 6 मीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, तभी जो है एलिफेंट का हर्ड उसको पास होगा। तो जो उस एरिया का जैसा एनिमल है, टाइगर एरिया है तो उसके लिए पैसेज प्लान अलग ढंग से, उसकी जो है डायमेंशन अलग होगा जो है पैसेज का, और एलिफेंट है तो उसका अलग होगा। और जो ग्रुप में एनिमल रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं, उसके लिए काफी वाइडेड होता है। जो दिन में मूवमेंट करते हैं उसके लिए जो है पैसेज प्लान का एरिया बिल्कुल लाइटेड होना चाहिए, विजुअलिटी क्लियर होना चाहिए। तो कई पैरामीटर को ध्यान में रख करके जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसको गाइडलाइन कहते हैं, मिटिगेशन गाइडलाइन। उसको कंसीडर करके जब जो प्रपोजल बनाया जाता है उसमें एक सेक्शन वो सब दिखाया जाता है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी रहता है, एडिक्वेट है, तभी उसको कंसीडर किया जाता है। अगर वो एडिक्वेट नहीं है, कोई डाउट हुआ है, तो एक कमेटी बनाई जाती है। वन कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी, और कमेटी विजिट करके उसका रिपोर्ट बनाती है और उसको सजेशन देती है। अगर प्रपोजल कंसीडर करना है तो उसको ये मेजर लेना जरूरी होती है। अगर ये भी लगता है कि ये प्रपोजल आना नहीं चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है
वो बहुत ज्यादा है और इसको कंसीडर नहीं होना चाहिए, तो प्रपोजल टोटली रिजेक्ट भी होता है। सो ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है प्रपोजल जो है कंसीडर हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, या एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब कमेटी रिकमेंड करे कि ये एडिशनल जो है मिटिगेशन मेजर उसमें लिया जाए। ओके, so there is any doubt on this slide? So there is a document you can consider, take document. That document is revised also, and that document is circulated to everybody. Now all this 4 project, the agency, they normally prepare proposal considering those parameters. Sir, children, if you have any questions to ask at this stage. All right, सर मैं फिर कुछ एक सवाल आपसे बस इसलिए पूछूंगा सर। पैसेज प्लान पहले होता है, अंडर द ग्राउंड हो सकता है, ब्रिज हो सकते हैं, और उसको जो है एबव बना सकते हैं, और उसके जो है कहीं क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर जाता है कि एनिमल जो है कम स्पीड से निकल जाए। तो पैसेज प्लान के कई तरीके होते हैं सर। सर बस बच्चों को ये बताते सर कि ये लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल्ड लाइफ के लिए खराब क्यों होता है सर, और क्या उससे संभावित नुकसान, पॉसिबल डैमेज क्या है? मैं एक करके आऊंगा तो उसमें बताऊंगा जो है सर, क्या होता है। अब लीनियर जो है जो इसमें बताया मैंने, रिकमेंडेशन जो है जो भी प्रपोजल बनता है तो वाइल्ड लाइफ का जो डिवीजन होता है, सर्किल हो या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसको प्रपोजल जो है जो आता है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अगर उनको लगता है कि प्रपोजल बराबर नहीं बनाया गया है, उसके कोई और भी अल्टरनेटिव हो, और या कहीं प्रपोजल में इंप्रूवमेंट किया जाए, या कहा उनको सजेस्ट किया जाए क्रिटिकल एरिया से जा रहा है इसको डाइवर्ट किया जाए, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, डीएफओ और कंजर्वेटर, उनको इंगेज करके जरूरत पड़ी एक्सपर्ट को बुला करके प्रपोजल को रिवाइज करते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में उसको रखा जाता है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भी एक्सपर्ट होते हैं, वो जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड उसको कंसीडर करके प्रपोजल जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजता है, और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में स्टैंडिंग कमेटी होती है, नेशनल वाइल्ड जो है स्टैंडिंग कमेटी उसको कंसीडर करती है। अगर लगता है प्रपोजल अप्रोप्रिएट है तो ठीक है, प्रपोजल अप्रोप्रिएट नहीं है तो कमेटी बना करके कमेटी जाएगी, उसको फील्ड में एग्जामिनेशन करेगी, उसको सजेशन देगी। कमेटी सजेशन भी दे सकती है कि प्रपोजल जो है इसका इम्पैक्ट जो है अनरिपेयरेबल है, बहुत ज्यादा है, तो वो प्रपोजल जो है रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन आज के डेवलपमेंट का जो प्रेशर है उसको देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, तो हाईवे हो या कैनाल हो या रेलवे हो, बहुत कम ही प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उसके जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पैसेज होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। आप देख पेंसिल बना हुआ है जिसमें कि एक ब्रिज तो 700 मीटर है लंबा, और 700 मीटर लंबा जो ब्रिज है उसको जो है वहां पर कैमरे लगाकर देखे गए कि सबसे ज्यादा बड़े इजिली एनिमल जो है 300 मीटर से ज्यादा जहां भी स्पैन ब्रिज का है, हाइट अच्छी है और उसकी विजिबिलिटी है, एनिमल वेरी इजिली जो है ग्रुप में आप जो है आते जाते रहते हैं, तो उनके मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज है कुछ एरिया में रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, जिससे एनिमल जो है रोड को वहां ना क्रॉस करें, उसी जगह क्रॉस करें जहां पैसेज उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे जो है उसके जो है कैजुअलिटी कम होती है। तो ये सब कंसीडर करने के बाद जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है अप्रोप्रिएट डिसीजन लेती है कि इसको अप्रूवल दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब आप देखिए रोल ऑफ नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड का क्या होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो चारों होते हैं, इसमें से अगर विद इन प्रोटेक्टेड एरिया है तो प्रपोजल कंसीडर किया जाएगा और फिर एग्जामिन किया जाएगा, उसको दिया जाए या न दिया जाए। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो पार्क और सेंचुरी है उसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व का कोई भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन नहीं होता है, तो उसके आसपास कोई प्रपोजल, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो बोर्ड के पास नहीं आएगा। लेकिन सेंचुरी और नेशनल पार्क के विद इन अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो भी नेशनल बोर्ड में आएगा, नेशनल बोर्ड उसको कंसीडर करके उसको एक्सेप्ट करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट?
ओके, अब आप देखिए कि आज से 15 साल पहले जो रोड में व्हीकल चलने वाले थे उस पर स्पीड बहुत कम हुआ करता था। 80-90 की स्पीड से गाड़ी चले तो बहुत होती है। आज के देखिए नेशनल हाईवे में, जो एक्सप्रेस हाईवे में स्पीड जो है 120-130 किलोमीटर से ज्यादा होता, और 6 लेन हाईवे है। तो अब जो है हाईवे, रोड और हाईवे, अगर कोई नया रोज प्रोटेक्टेड एरिया सेंचुरी नेशनल पार्क में आता है तो उसका प्रपोजल आएगा, और कोई हाईवे पर जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में रहा है। मैंने हाईवे इसलिए यूज किया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, क्योंकि रूरल रोड, गांव की जो छोटी सड़कें होती हैं, वो जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए नेशनल बोर्ड के पास प्रपोजल नहीं आएगा। और अगर छोटी रोड है, विद इन प्रोटेक्टेड एरिया है, उसकी वाइडनिंग करनी है या उसका नेचर चेंज करना है, कच्चे से पक्के बनाना है, तो भी जो है वो प्रपोजल जो है प्रोटेक्टेड एरिया का नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में आएगा। वाइडनिंग ऑफ द हाईवे इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में है तो भी प्रपोजल नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का आएगा। लेकिन नई रोड बनानी है या छोटी रोड की वाइडनिंग करनी है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, उसका प्रपोजल नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा कि नो परमिशन जे रिक्वायर फॉर लोकल रोड इन दी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, और उसमें कंपोनेंट्स ऑफ मिटिगेशन मेजर एंड पैसेज प्लान, ये एक उसका सेक्शन होता है, वो उसकी मैट्रिक्स होती है कि माइलेज कितने कितने किलोमीटर पर कैसे पैसेज है, पैसेज का डायमेंशन क्या है, वो पूरा डायमेंशन आएगा। लगेगा कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एडिक्वेट डायमेंशन नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एनी डाउट ऑन दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज नेशनल हाईवे और जो है आजकल हाई स्पीड जो हाईवे है, इसमें एनिमल की डेथ जो है वो बहुत ज्यादा है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा हूँ। मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो आपको ये होगा कि एवरेज जो है करीब जो है 18 से 20 हाथी हर साल जो है वो रोड और रेलवे एक्सीडेंट में मरते हैं। अगर हम अभी आपको एग्जाम्पल दूँ कर्नाटक में, तो 6 महीने में जो है वो 13 टाइगर और 13 लेपर्ड्स जो है वो या तो डेथ हुई है, इंजरी हुई है। और 14 महीने में मध्य प्रदेश में जो है 149 लेपर्ड जो मरे हैं, उसमें 49 लेपर्ड की डेथ जो है वो रोड कोलिजन में हुआ है। तो आप देखिए रोड कोलिजन में टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लायन, इसका रिपोर्ट तो विधिवत आता है, लेकिन छोटे छोटे जानवर है, इनकी संख्या हजारों में होती है। जैसे सिवेट हुआ, मंगूज हुए, आपके फॉक्सेस हुए, जैकाल हुए, जो छोटे रेप्टाइल्स हुए, ये इनके डेथ का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप किसी रोड में 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाईवे में चले जाए तो एक आध एनिमल आपको मरा मिलेगा। तो इनकी संख्या जो डेथ है बहुत ज्यादा है, क्योंकि व्हीकल की स्पीड इतनी ज्यादा होती। पहले क्या होता है, व्हीकल की स्पीड कम होती है तो एनिमल जो होते हैं अपने को मैनेज कर लेते हैं। जैसे देखते हैं थोड़ी स्पीड कम होने का अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। डेथ रेट वाज वेरी लो। हाई स्पीड स्पेशली हाईवे पर जो एनिमल की डेथ बहुत ज्यादा है। अगर एडुकेट पैसेजेस उसकी बैरियर न क्रिएट किया जाए, जहां जहां पॉसिबिलिटी पहले स्टडी की जाती है कि एनिमल का नॉर्मल रूट क्या है, किस जगह से एनिमल ज्यादा जाते हैं, जहां एनिमल जिस जगह से ज्यादा गुजरते हैं वहां पर पैसेज, एडुकेट पैसेज प्लान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और वो भी एनिमल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, भावनगर में हमारा एक ब्लैक बक नेशनल पार्क है, जहाँ की उसके वहाँ उसके आसपास एरिया में 5000 ब्लैक बक नेशनल पार्क है। वुल्फ भी है और हाइना भी है। तो मैं एक स्टडी में गया तो मैंने देखा एक साल में 36 एनिमल, 32 ब्लैक बक, 2 वुल्फ, एक साल में एनुअल डेथ इन दैट एरिया, क्योंकि एडुकेट पैसेज नहीं दिया गया था और उसका अप्रूवल भी नहीं लिया गया था। वो हमारे ख्याल से अगर केस लिया जाए तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है जो हाईवे अथॉरिटी के लिए। तो निग्लिजेंस के कारण रोड पैसेज दिए बिना रोड बना दिया गया है और उसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पूरे कंट्री में एसेस किए, नॉर्मली पेपर में जो है वो आपका एलिफेंट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, इन सब का केस आता है, लेकिन टोटल वाइल्ड लाइफ माइनर एनिमल रेप्टाइल का अगर उसको अकाउंट किया जाए तो एनिमल का डेथ जो है रोड पर वो बहुत ज्यादा है।
इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू बन गया है कि अब रोड का नेचर भी बदलता जा रहा है। पहले 2 लेन रोड थी, 4 हुई, अब 6 हुई, अब 8 बनती जा रही है। एक तो स्पीड ज्यादा है, एक तो जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल जो बहुत बढ़ गए हैं। तो अब एनिमल अगर क्रॉस करने का भी करेज किया तो हमारे ख्याल से बहुत चांसेस है कि इट विल बी ट्रैप इन दी व्हीकल। तो क्रॉसिंग अगर पैसेज नहीं दिया गया तो एनिमल का डेथ रोड पर होना नियर सर्टेनिटी हो गया है। आज के कंडीशन में ये बहुत जरूरी हो गया कि जो भी हाईवे बन रहे हैं या उनकी वाइडनिंग हो रही है, उसका जो है प्रपोजल पैसेज प्लान बनाकर लिया जाए। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है कि हमें सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्टेड एरिया सेंचुरी नेशनल पार्क में ही है। वाइल्ड लाइफ तो हर जगह है, लेकिन ये जो बोर्ड जो होता है वो सेंचुरी नेशनल पार्क इकोलॉजिकल सेंचुरी जोन ही देखता है। इसलिए पूरे कंट्री में और जगह जहाँ ये नहीं है वहाँ एनिमल का डेथ हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसलिए जो है हाईवे पर जो है उसका पैसेज प्लान और भी बड़ा स्ट्रिक्ट पैसेज प्लान और मिटिगेशन मेजर उसको करना बहुत जरूरी है। और जगह जगह पर जहां भी पैसेज है कैमरे फिक्स किए जाएं, कैमरे उसको मॉनिटर करेंगे कि इससे एनिमल पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल का एग्जाम्पल जो है वो पेंच नेशनल पार्क में है, जहां का आप देखिए पहले तो प्रपोजल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और रोड अथॉरिटी से काफी फाइट हुआ, लड़ाई भी हुई। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपया खाली वाइडनिंग के लिए इसके लिए पैसेज प्लान का खर्चा होगा। तो एनी हाउ कुछ रिड्यूस किया गया, हमारे ख्याल से 200 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करके जो पैसेज प्लान दिया गया है महाराष्ट्र और पेंच नेशनल पार्क में, उसको देखने लायक है। क्योंकि उसके दोनों तरफ ऐसा भी बैरियर बनाया जाए कि एनिमल लाइट भी न देख सके और साउंड को भी न सुन सके। उसके दोनों रोड के दोनों तरफ कुछ ऐसे बैरियर क्रिएट किए गए कि साउंड और लाइट प्रूफ रोड बनाया गया है। अंदर और नीचे पैसेज जो है 300 मीटर वाइड ब्रिज से लेकर 700 मीटर वाइड जो है लंबा ब्रिज दिया गया है। और ब्रिज में हर पिलर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जिससे कि इंडियन गौर, सांभर, चीतर और लायन जो है इनके ग्रुप भी आराम से उससे पास हो सकते हैं। सबसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट के लिए जो है डायमेंशन जो है रोड का बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तो ग्रुप में जाते हैं, इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो है खर्चा ज्यादा होता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु विस्तार में जहाँ एलिफेंट ज्यादा है, वहाँ रोड की डिजाइन और बनाने में बहुत खर्चा भी होता है। मैं एग्जांपल दूं कि एक बंगलोर चेन्नई हाईवे है, तीसरा हाईवे बन रहा था, 7 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया था। मैं उस कमेटी में गया तो हमने कहा तो 2 हाईवे बने हुए हैं, तो तीसरे हाईवे बनाने की क्या जरूरत है। तो यही नहीं, हाँ, उन लोगों ने डिसीजन लिया जो डिसीजन मैं अप्रोप्रिएट समझता नहीं है। दोनों तरफ रोड बन गई, तो हमने कहा कि 7 किलोमीटर रोड जो है वो ये हवा में होनी चाहिए, तो पिलर दे करके पूरा होना। यानी हम कुछ हिली एरिया होता था तो 7 किलोमीटर में 4 किलोमीटर रोड जो है वो ब्रिज के अंदर है, जिससे कि वहां पर कुछ 120 एलिफेंट है उस एरिया में पहुंच गए हैं, तो आसानी से गुजर सकते हैं। तो रोड हाईवे में जो गाइडलाइन दिए गए हैं बोर्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है और इसको कंसीडर करके ही प्रपोजल दिया जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड के लोग इतने सेंसिटिव न होने के कारण बहुत से प्रपोजल जो है अप्रोप्रिएट प्लान बनाए बिना ही अप्रूव हुए हैं, लेकिन बोर्ड इसके बारे में काफी कॉन्शियस रहता है। इसी तरह रेलवे में आप देखिए, रेलवे से भी काफी एनिमल के डेथ होती है। अगर देखा जाए तो मैं एक फिगर दूं, जो है 2009-10 से लेकर 2024 तक जो है 186 एलिफेंट का डेथ जो है वो ट्रेन कोलिजन में हुआ। सोचिए, ट्रेन से प्लीज नोट डाउन व्हाट सर इज टेलिंग यू, प्लीज नोट डाउन। या ट्रेन से जो है टकराने से कुल डेथ जो है 186 एलिफेंट। आप मान लीजिए 13-14 एलिफेंट हर साल जो है वो ट्रेन कोलिजन से मरते हैं। तो आप अब एलिफेंट तो बड़ा एनिमल है, एक ही एलिफेंट मिल जाता है तो उसका डिटेक्शन हो जाता है, पर बाकी वाइल्ड लाइफ के क्या? क्योंकि बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतना सेंसिटिव है नहीं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, इवन लेपर्ड भी मर जाता है तो कभी कभी वहां से गायब हो जाता है। तो छोटे एनिमल के लिए सेंसिटिविटी कम होने के कारण
पूरा इम्पैक्ट जो है रोड और रेलवे को हम एसेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी जो है पिछले 10-12 साल में जिस स्पीड से रोड रेलवे का निर्माण हुआ है, उससे जो एनिमल का लॉस हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। और हमारा फोकस केवल प्रोटेक्टेड एरिया और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में है, लेकिन एनिमल का लॉस जो है अदर फॉरेस्ट एरिया और नॉन फॉरेस्ट एरिया में ही, क्योंकि वहां भी वाइल्ड लाइफ तो गुजरते हैं, वहां भी मूवमेंट करते हैं। हर गांव में कोई न कोई वाइल्ड लाइफ, जयकाल तो होगा ही नहीं, कुछ जयकाल होंगे, फॉक्सेस होंगे, कुछ न कुछ एनिमल तो रहते ही हैं। तो आप देखिएगा तो रेप्टाइल या कुछ भी एनिमल हो, तो इससे जो है डेथ का स्केल बहुत ज्यादा है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो एक रेलवे है। तीसरा प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन कैनाल है। हालांकि इरिगेशन कैनाल से किसी भी जो लीनियर प्रोजेक्ट से उसमें दो चीज होते हैं। मैं थोड़ा यहाँ रोड में फिर से जाता हूँ। रोड में 3 प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फ्रेगमेंट होता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस होता है, एनिमल का डेथ होता है। दूसरे क्या, ज्यादातर एरिया में जो आजकल फ्लड आ रहे हैं ना, क्योंकि जब एक्सेस रेनफॉल होता है तो रिवर और स्ट्रीम दे आर नॉट एडुकेट टू अलाउ पैसेज ऑफ द वाटर। तो पानी जो है, जो भी अंडुलेटिंग टेरेन होती है, उससे होकर गुजर जाता है। हाईवे बनने के कारण जो है पानी का जो पैसेज होता है जो है अतिवृष्टि कहते हैं, जिसको कहते हैं एक्सेस रेनफॉल होता है, जिसके कारण फ्लडिंग होती है। दूसरे और हाईवे जो बन रहे हैं वो बड़े बड़े लेक से भी होकर गुजरते हैं, तो वेटलैंड भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरी चीज है सोशल फ्रेगमेंटेशन। जो आदमी आराम से जो है एक गांव से दूसरे गांव में निकल जाता था अपने बैलगाड़ी लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, अब एक्सप्रेस हाईवे ऐसे बन गए हैं कि वो गुजर नहीं सकता है। अगर उसके गुजरने के लिए रास्ते दिए जाए तो ठीक है, तो सोशल इम्पैक्ट भी है। तो ये हाईवे जो है कई तरह से जो है सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और इरिगेशन है, इरिगेशन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इरिगेशन के जो भी कैनाल जाते हैं ना, तो ऊपर से कई जगह जो है जो गाइडलाइन दिया गया ऊपर से कवर कर दिया जाता है। ऊपर से कवर कर देने से क्या होता है, एनिमल ऊपर से गुजर जाता है। सर्टेन किलोमीटर में 25-30 मीटर जो है इस तरह का पैसेज दे दिया गया। कुछ जगह तो पूरा कैनाल ही अंडरग्राउंड बना दिया गया, मतलब वो टनल बना दिया गया, अंडरग्राउंड जाता है। तो कैनाल से है नुकसान होता है पैसे उससे जो है, लेकिन इसका मिटिगेशन एडुकेट किया जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है मिनिमम होता है। अब आपको मैं हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर ले आ रहा हूँ। ये नई एरिया है, क्योंकि पहले ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना 400 केवी की 220-400 केवी मैक्सिमम होता है। अभी जो है 700 से ज्यादा केवी की ट्रांसमिशन जो लाइन जा रही है। अभी पूरे राजस्थान के डिजर्ट और ये कच्छ, रण ऑफ कच्छ में अब देखिए, तो मैं डिस्कस कर रहा था डिपार्टमेंट से, उनका कहना है कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा सोलर विंड एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी के को करने के लिए। तो वहां पर क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान में है और गुजरात में है। कई स्टेट में थे, पर अभी तो राजस्थान में रह गए। गुजरात में 3-4 बर्ड्स बचे हैं और एक दो बर्ड महाराष्ट्र, कर्नाटक इस तरह बचे हुए हैं। तो इनका फ्यूचर अभी प्लान बनाया गया है। तो राजस्थान में ब्रीडिंग सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर में हमारे ख्याल से अभी अच्छे 60 हुए हैं, और उनका एक्स जो है ट्रांसपोर्ट करके कच्छ की सेंचुरी में डाला गया, सक्सेसफुल रहा है, बच्चा निकला है, अभी वो कई दिन का हो गया है। तो अब ये प्लान है कि जब ब्रीडिंग सेंटर में पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसको इंट्रोडक्शन जो है, जो ग्रासलैंड है आपके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और 2029 के बाद इसका इंट्रोडक्शन शुरू होगा। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने जा रहा हो। लेकिन हुआ क्या, ट्रांसमिशन लाइन से राजस्थान में है 10 GIB, अब कुल पॉपुलेशन 120 है, 10 GIB जो है वो ट्रांसमिशन लाइन से मर गए जो है वहां पर। अब क्या होता है, मेल तो फीमेल तो एवरेज 6 kg का होता है, kg का होता है, लेकिन मेल GIB जो होता है ना 12 से 15 kg का होता है। तो जो उसका वो साइज बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी डेथ हुआ है ज्यादातर मेल का हुआ है। अब आप देखिए गुजरात के जहां पर मैं था तो 48 ग्रेट इंडियन बस्टर की पॉपुलेशन थी, अभी जो है केवल 3 है, तीनों फीमेल है, एक भी मेल नहीं है।
किसी भी स्टेट में कर्नाटक महाराष्ट्र में मेल नहीं बचे हैं, क्योंकि मेल की साइज इतना ज्यादा होती है कि ट्रांसमिशन लाइन में अपने को मैनेज नहीं, देख लिया तो मैनेज नहीं कर सकता है टर्न करने, तो क्या उसका कोलिजन से उसकी डेथ हो जाती है। तो मेल के डेथ इवन इसी तरह काफी संख्या में लेसर फ्लोरिकन जो भी बस्तर ग्रुप का बर्ड होता है उसका दोनों क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है। तो क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान गुजरात में 99,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है कोई जो है सोलर एनर्जी का प्लांट नहीं लगेगा, कोई ट्रांसमिशन नहीं बनाई जाएगी। तो अब बड़ा मतलब पूरे कंट्री कहते हमारा नेशनल कमिटमेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें अचीव करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो है प्रोडक्शन जो है वो कोल और इससे ज्यादा होने वाला है। किसी स्टेट में तो ऑलरेडी सरप्लस पहुंच चुके हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको बाद में। तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट में गई कि इससे तुम्हारा पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का पूरा और ये हाइड्रोजन से जो एनर्जी बनाने वाले हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है अरबियन कंट्री, जापान, कई कंट्री का बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अडानी के हैं, बहुत होने वाले हैं। इन लोगों ने पूरा जो है ग्रेट सेंचुरी एरिया छोड़कर पूरा जमीन जो है ज्यादातर लोग ग्रैब करते चले जा रहे हैं, और चारों तरफ से ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क बन रहा है। तो बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में मैं भी था। तो किसी तरह एक रबरीज का रास्ता बनाया कि राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन बस्तर की सेंचुरी है उससे लगते हुए विस्तार में 14,200 स्क्वायर किलोमीटर में न तो कोई सोलर पैनल एनर्जी लगेगा, न तो ट्रांसमिशन लाइन लगेगी। जो भी ट्रांसमिशन लाइन उसको रीरूटिंग होगी या अंडरग्राउंड की गई। तो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर जो राजस्थान का जीआईबी का एरिया है, सेंचुरी है, उसके आसपास के एरिया 14,000, उसमें जो है आर्मी की फायरिंग रेंज है जिसमें 120 जीआईबी बर्ड है, तो उनकी पूरी फुल सिक्योरिटी दी गई है। इसी तरह गुजरात में 730 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको वहां से हटा दिया जाए या अंडरग्राउंड, दो ही है, रीरूटिंग या अंडरग्राउंड। अभी एक और डिसीजन लिया गया कि भाई इसको किया क्या जाए। तो जो हमारा ग्रेट रन है, बड़े बड़े पावर प्लांट लग रहे हैं, उसके 8 ट्रांसमिशन लाइन आई है। तो फिर उसको कंसीडर करके बोला गया एक कॉरिडोर दे दिया जाए। तो 1.5 किलोमीटर का बेल्ट दे दिया गया। तो उसी ट्रांसमिशन लाइन से सब जितनी 8 ट्रांसमिशन लाइन है उसी से गुजरेंगी, और उसकी स्टैगरिंग, पिलर की स्टैगरिंग ऐसे कर दिया जाए कि बर्ड को लगे कि हमारी वॉल जैसे है, तो उसकी विजिबिलिटी दूर से पता चल जाए, तो बर्ड अपने को फ्लाइट को उसको कर सकती है। तो ट्रांसमिशन लाइन से जो डेथ होती है ना, वो 10 kV लाइन तो अलाउड है, उससे डेथ ज्यादा नहीं होती है। 30 kV लाइन और 60 kV लाइन जो है इसको अंडरग्राउंड किया जाए। 30 kV लाइन तो अंडरग्राउंड करते हैं जो है, 60 kV का भी कर रहे हैं, लेकिन खर्चा ज्यादा होता है। हाई ट्रांसमिशन लाइन का उनका जो है अंडरग्राउंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, या तो बर्ड रिफ्लेक्टर लगाया जाए। बर्ड रिफ्लेक्टर हर 10-10 मीटर पर लगता है, वो भी 2,500 से, पहले तो 5,000 का आता था एक रिफ्लेक्टर, फिर 2,000 का, अभी 500 का आता है। तो बहुत तो कहते हैं एसएस किया 6,000 करोड़ रुपया बर्ड रिफ्लेक्टर आ जाएगा। तो बर्ड रिफ्लेक्टर एक है, लेकिन वो भी जो है हवा में गिर जाता है, दूसरे साल गिर जाता है, तो उसका मेंटेनेंस के बड़ा खर्चा होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन से जो बर्ड की आप रिपोर्ट पढ़े यूरोपियन कंट्री का, अमेरिका का, 4 मिलियन बर्ड्स एनुअली डेथ होती है। हमारे कच्छ में 1500 किलोमीटर पर का 11 महीने की स्टडी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने किया है। उसमें 82,000 बर्ड जो है अंडर ट्रांसमीटर लाइन डेड पाए गए 11 महीने में। तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो एविफोना पर किस तरह पड़ रहा है। और 82,000 बर्ड 11 महीने में अगर मरते, और ज्यादातर डेथ जो है छोटी बर्ड जो है ना बड़ा मैनिपुलेट कर लेती है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन कुछ मीटर पर देखिए अपने को फ्लाइट को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन क्रेन्स हैं, रैप्टर्स हुए, पेलिकन्स हुए, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसकी साइज बड़ी होती है ना, उसका जो फ्लाइट जो है थोड़े डिस्टेंस को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े बर्ड का डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको अभी किसी ने इवेल्युएट नहीं किया है। इसका इम्पैक्ट एविफोना पर, वाइल्ड लाइफ पर जितना पड़ने वाला है, जिस तरह ट्रांसमिशन लाइन पूरे कंट्री में
आप कहीं भी चले जाइए वेस्टर्न कंट्री में तो आपको आकाश में ट्रांसमिशन लाइन ही दिखाई देती है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला इवन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन ब्रेन, इसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। कारपोरेट सेक्टर जो है इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती नहीं है और इस सब्जेक्ट को ठीक से देखा न गया तो बड़ा नुकसान होगा। इसमें हमने कई बार बोर्ड में प्रपोजल भी दिया, रिसर्च भी किया, फिर ये हुआ कि जितने ट्रांसमिशन लाइन सेंचुरी नेशनल पार्क है वो एरिया जो है ग्रास लैंड की तरह उसको मेंटेन किया जाए, जिससे कि जो है अंगुलेट को वहां पर फूड मिल सके। तो कई मेजर लिए गए हैं, फिर भी जो है ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा पड़ने वाला। अब इस पर कोई आपको प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझे दिखाई देता है। Students have any questions? नॉर्मली इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि ट्रांसमिशन लाइन से कितना नुकसान हो रहा है। गुड इवनिंग हमारे कच्छ में सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग कौशल जी, गुड इवनिंग सर। प्लीज। हाँ सर, ये बड़ा अच्छा लेक्चर था, बहुत सारी नई चीजें हमें देखने को मिली। सर, एक जो अभी हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि हाईवे का जो इम्पैक्ट है, तो हम अनुभव है कि जब हम हाईवे पे जा रहे होते हैं और एक पॉलिनेटर की स्टडी भी बहुत आवश्यक है। हमारा पर्सनल वो है कि जब हम जबलपुर से भोपाल जा रहे होते हैं, यही महीना अगस्त, तो भी हो गाड़ी की हमारी, तो उसमें जाकर के बहुत सारे पॉलिनेटर मर जाते हैं। तो जो इसका एक हाईवे पे पॉलिनेटर का भी एक इफेक्ट की स्टडी की जा सकती है क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या कि कोई स्टडी हुई हो एवी फोना की द्वारा? डॉक्टर साहब, मैं बस बच्चों को समझा दूं पॉलिनेटर से। मेरे हिसाब से एक मिनट सर, बस बच्चे समझ जाएं, उसको कॉन्टेक्स्ट में रख लें सर। पॉलिनेटर्स आर दोज इंसेक्ट्स व्हिच आर, यू नो व्हाट पॉलिनेटर। हाँ, पर जब आप ड्राइव करते हैं और हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं तो आपकी विंड स्क्रीन पर कार के सामने बहुत सारे इंसेक्ट चिपक के मरने लग जाते हैं। तो फास्ट मूविंग हाईवेज are also causing death of a very large number of pollinating insects, which are creating a problem in the flowers being converted into fruit. क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं। इनका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम इम्पैक्ट जो है बड़े मेगा मैमल पर देखते रहते हैं, छोटे रेप्टाइल, छोटे एनिमल भी नहीं देते हैं। पॉलिनेटर तो भूल ही जाइए। जो इंसेक्ट का जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी या फॉरेस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस पर तो कोई स्टडी हुई नहीं है खास। अगर स्टडी किया है तो निश्चित है इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। पॉलिनेटर जो है उसमें जो है आपके बटरफ्लाई हो या कोई भी पॉलिनेटर है नॉर्मली हो, आप देखेंगे तो आपके कार की गाड़ी में कहीं कहीं अटके दिखाई देते हैं। तो बहुत ज्यादा है, इम्पैक्ट तो सर्टेनली है। कितना पड़ता है वो हम आपको इसके बारे में ठीक से बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो तो होता है। और इसमें एक चीज है कि अगर रोड साइड में प्लांटेशन खूब किया जाए तो हमारे ख्याल से उसमें वो रेस्ट कर लेंगे, फ्लाइट में रेस्ट करेंगे, फिर उसको रेस्ट करके क्रॉस करते तो मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट है, मैं एग्री करता हूँ इससे। सर, मेरा एक इसमें सवाल है। आपने ये बताया कि प्रोटेक्टेड एरियाज में से जब हाईवे बनना है या वाइडनिंग होनी है रोड की या कोई लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस लेते हैं। तब आप उसमें अपने रिस्ट्रिक्शंस, परमिशंस में कंडीशंस डालते हैं कि आपको इतना अंडर पैसेज देना पड़ेगा, एनिमल मूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन कॉरिडोर्स में भी सर क्या इतना ही, जो दो प्रोटेक्टेड एरिया के बीच का जंगल है जो दो नेशनल पार्क्स को कनेक्ट कर रहा है, उसमें भी क्या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये क्लियरेंसेस की परमिशन लगाता है सर, अगर उसमें हाईवे बनना है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केवल दो के ही कॉरिडोर जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। एक तो टाइगर का कॉरिडोर है, एलिफेंट का कॉरिडोर है। तो इन दोनों के कॉरिडोर में अगर कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट जाता है उसका प्रपोजल आता है, चाहे वो पोलिटिकल सिस्टम जोन में पड़े या ना पड़े। ओके ना? बाकी साधारण फॉरेस्ट भी हो, टेरिटोरियल भी फॉरेस्ट हो, जो कि नेशनल पार्क भी नहीं है, इको सेंसिटिव जोन भी नहीं है, सेंचुरी भी नहीं है,
लेकिन वो कनेक्टिंग लिंक है, उसमें से अगर हाईवे बनना है तो आपके पास परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आइडेंटिफाइड है, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन केवल टाइगर और एलिफेंट के लिए हुआ है बस, जी जी। बाकी किसी एनिमल के लिए ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि टाइगर के 6 लैंडस्केप हैं। विद इन लैंडस्केप जो है, अगर कॉरिडोर जो उन्होंने बना रखा है, मैपिंग किया है पूरा कॉरिडोर का, जो उन्होंने जो भी पगमार्क है, जो भी उन्होंने उनकी साइंस है, उस साइंस से उन्होंने कॉरिडोर नक्की किया गया है। तो उस कॉरिडोर में कोई भी डेवलपमेंट होगा तो वो जरूर, खाली लिनियर प्रोजेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का डेवलपमेंट है, प्रपोजल आएगा। लेकिन अब लेपर्ड का कॉरिडोर है, इन सब के कॉरिडोर अभी नक्की इसके जो है फिक्स नहीं है, न बनाए गए हैं। केवल एलिफेंट और आपके टाइगर बनाए, हमारे गुजरात में लायन के बनाए गए हैं। लायन, क्योंकि लायन जो है अब 7 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है, और प्लान जो गुजरात गवर्नमेंट का हमें 11 डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है। पॉपुलेशन इतने तेज से बढ़ रही है, डिस्पर्स हो रहे हैं, तो उनके कॉरिडोर के बारे में कंसीडर हो रहा है। सर एक बात और थी कि कॉरिडोर्स पर आपको परमिशन के लिए अगर कोई एजेंसी को अप्लाई करना है, जैसे नेशनल हाईवे हूं मैं, और मुझे जबलपुर से भोपाल का हाईवे बनाना है, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या क्यों मुझे ऐसा महसूस होगा कि मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? पहले तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो भी एजेंसी होगी वो डिवीजन में जाएगी, फॉरेस्ट डिवीजन में जाएगी। फॉरेस्ट डिवीजन से डिटेल लेगी कि नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ पर है, इकोलॉजिकल सेंचुरी जोन का कहाँ पर है, कॉरिडोर कहाँ पर है। सर फिर अगर वो मैप लेकर क्या करते हैं, वो इंगेज करते हैं किसी एक्सपर्ट को। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को इंगेज कर सकते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट को इंगेज कर सकते हैं, या कुछ एक्सपर्ट को इंगेज करके उनको इंगेज करके एज पर द गाइडलाइन वो जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं। कि पैसेज प्लान एक अलग से चैप्टर दिया जाता है, उसकी एक टेबल दी जाती है कि किस माइलेज, किलोमीटर होता है, इस किलोमीटर पर ये पैसेज के डायमेंशन है। ब्रिज भी हो सकता है, ओवर ब्रिज भी हो सकता है, या कलवर्ट होता है, या पाइप, जो भी हो, उसके गाइडलाइन से वो बना करके वो उनको एक्सपर्ट को इंगेज करना पड़ता है। अगर इंगेज किए बिना कोई प्रपोजल अपने से बना कर ले आते हैं तो कमेटी फिर जो है बोर्ड जो है अपनी कमेटी बनाएगी, उनको भेजेगी, एग्जामिन करके प्रपोजल भेजना पड़ेगा। नॉर्मली बिना पैसे प्लान के प्रपोजल आते हैं तो हमने उसको ऑब्जेक्शन करके वापस करा दिया है। मैं खुद उसको जो है बोर्ड में कंसीडर होने के लिए कहा कि इसको तब तक कंसीडर नहीं किया जाए जब तक कि पैसेज प्लान इसमें अटैच न हो। तो बेसिकली पैसेज प्लान इसलिए रहता है सर कि जंगल की कनेक्टिविटी बनी रहे और जानवरों को लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ना यूज करके उसके लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद आने जाने का रास्ता उनका बना, उनका जो है पैसे बना रहा है, उनका कोई वो उसको नुकसान ना हो। सर अब एक सवाल ये था सर, जैसे आपको अप्लाई किया तो आप तो देख पाएंगे सर, जैसे कि पेंच वाले हाईवे पर अप्लाई किया तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कहा कि बहुत हैवी पैसेज है एनिमल्स का, इसलिए रोड को आपको उठा के बनाना पड़ेगा। लेकिन जबलपुर भोपाल हाईवे जब बना तो उसमें तो कोई ऐसा मिटिगेशन मेजर यानी वही पैसेज प्लान जो है सर, मैं बच्चों के लिए बस बता दूं, तो उसमें कोई मिटिगेशन मेजर नहीं लगाया और सड़क पर लाल रंग से मार्किंग कर दी कि ये कॉरिडोर है। नहीं सर, वो ज्यादातर वो रोड जो बना है वो इकोलॉजिकल सेंचुरी जोन या सेंचुरी में नहीं है, पर कॉरिडोर है सर, आइडेंटिफाइड टाइगर कॉरिडोर है सर। आइडेंटिफाइड टाइगर कॉरिडोर है तो इसके मतलब कहीं मिस्टेक हुई है सर, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से मिस्टेक हुई हो या प्रपोजल में उन्होंने दिखाया नहीं हो या सेंटर, क्योंकि जो टाइगर से रिलेटेड मैटर जाता है बोर्ड में आने के पहले प्रपोजल जो है एनटीसीए में जाता है। जी जी जी, एनटीसीए एग्जामिन करके प्रपोजल बोर्ड में ले आता है कि ये कॉरिडोर में है या नहीं है तो क्या प्रिकॉशन, वो पूरा जो है टर्म्स कंडीशन देते हैं, ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जी जी। तो और अगर एनएचआई सर अगर बना दे, अगर कोई बना दे और वायलेट कर दे या आपसे परमिशन न ले तो उसकी क्या सजा हो सकती है? उसकी सजा तो ये है कि वाइल्ड लाइफ, अगर सेंचुरी नेशनल पार्क है तो उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं आप। जी जी, एज पर द रूल, ओके ना। आई एजेंसी को आप ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। सर आपकी अनुमति से अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना हो किसी डेलीगेट को तो सर मैं, हाँ, कबीर यू टेक इट फॉरवर्ड प्लीज। Yes. We now move into the question and answer phase. नहीं, ये चीजें हम बता दें आपको, मैं अपनी कमजोरी को पहले आपको एक्सेप्ट करता हूँ कि
ये तो आपको मालूम पड़ेगा है कि डेवलपमेंट फोर्सेज जो है दे आर मच मच स्ट्रांगर देन दी कंजर्वेशन फोर्स। आप भी कंजर्वेशन के एक एलिमेंट है, एज एडवोकेट आप भी केस लड़ते रहते हैं, मैं भी बोर्ड में अपना रोल परफॉर्म करता रहता हूँ, जो भी है पर जो है किया हूँ जो है। और इस समय कंट्री का फोकस जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीडीपी, पूरा कंट्री जो है पूरा आप देखेंगे ना 3 लाख सम करोड़ जो है हाईवे को पैसा दिया जाता है, नेशनल बजट आप देखिएगा। तो मतलब ये अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और आप ट्रांसमिशन लाइन देखिए ना इस समय जो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर तरफ जा रहा है। इसके अगेंस्ट में कंजर्वेशन का वॉइस जब रेस किया जाता है ना, एक ही रास्ता बनता है कि उसका मिटिगेशन प्लान ले आओ, ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप देखिए कि नॉर्मली जो है वीक पड़ जाता है, तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि इंटीग्रिटी, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का प्राइमरी रोल है टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओके ना, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। हमें वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये बोर्ड का प्राइम गोल है। लेकिन क्या होता है, बोर्ड जो है, अब बोर्ड में ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जो भी कह लीजिए 2-1 लोग बाहर वाले होते हैं। तो और डेवलपमेंट फोर्सेज जो है, जिसको हम आप जानते हैं किस तरह के फोर्सेज होते हैं, वो तो गवर्नेंस को डिसाइड करते हैं, तो बोर्ड की क्या चीज होती है। तो डेवलपमेंट फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, जिससे कंजर्वेशन का जो चीज जो है ना वो वीक पड़ता दिखाई दे रहा है। और अभी इसको देखिए, अब लॉबी ये क्रिएट करना बहुत जरूरी है। लॉबी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है या नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हवा है। अब दिल्ली की हवा बिगड़ गई तो जीडीपी, उस हवा की तो कोई जीडीपी है नहीं, या गंगा रिवर जो है खत्म हो गई, ऑलमोस्ट जो है विंटर और समर में वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है 12% ही पानी बहता है, और 87% वाटर जो है वो विंटर और समर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल और मिडिल गंगा कैनाल। और जितनी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र के अलावा सब जो है समर में ऑलमोस्ट डेथ के नजदीक है। और रिवर सिस्टम का इकोलॉजी, अंडरग्राउंड दिस थिंग या एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट है वो आप जानते हैं। तो अब जो नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको कह लीजिए वो उसकी क्या कीमत है, जो है जब तक ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है नहीं रिफ्लेक्टेड होगी, मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन नेचर। नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएंगे आपके, फॉरेस्ट आएगा, माउंटेन आएगा, रिवर आएंगे, लेक आएंगे, मैंग्रोव आएंगे, कोरल रीफ आएगा, जो भी आप कह लीजिए, और उसके एलिमेंट जो है टाइगर, एलिफेंट, लायन सब आते हैं जो है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, हवा की वैल्यू ज्यादा है कि गाड़ी का कंसंट्रेशन करके पेट्रोल डीजल या किसी तरह का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा है। नदियों की कंडीशन करिए, जब तक सोसाइटी एज होल, सोशल मूवमेंट इस पॉइंट पर पहुंचे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व नेचर पर है। हमें नेचर ने पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, हवा का रेंज, ऑक्सीजन का रेंज, क्लाइमेट का रेंज, एक नैरो रेंज बनाया है जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है। हमें उसको मेंटेन करना है या नहीं करना है, चाहे क्लाइमेट चेंज इशू हुआ या ग्लोबल वार्मिंग जो भी कह लीजिए। तो अनलेस जो है नेचर्स कंपोनेंट को इकोनॉमिक में प्रॉपर प्लेस नहीं दिया जाएगा, तो हमें इस बैटल को जीतना बहुत मुश्किल होगा। भले 6% आप जीडीपी कहो, लेकिन जब नेचुरल वैल्यू का अकाउंट करो, हो सकता है कि जीडीपी नेगेटिव हो, 6 की जगह नेगेटिव हो जाए। तो जीडीपी में जब तक नेचर्स कंपोनेंट डेवलपमेंट का लॉस नहीं अकाउंट होगा, तब तक जो है हम इस बैटल को जीत पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और इस बैकग्राउंड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया और जो मैं डिस्कस न भी कर पाया, इस बैकग्राउंड में जो है नेशनल बोर्ड की इंटीग्रिटी पर चर्चा या क्वेश्चन उठाना वाजिब बनता है। इसीलिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अभी,
उन्होंने नेशनल बोर्ड के पिछले 10 साल मैं उसका मेंबर हूँ। मैं खुश हूँ वाले लोग गए हैं, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड का जो स्टैंडिंग कमेटी होती थी पहले जो है एक्सपर्ट ज्यादा हुआ करते थे, ऑफिशियल कम। अभी सब ऑफिशियल हैं, 2 या 3 जो है बाहर की। तो मेजॉरिटी के वॉइस में माइनॉरिटी करके डिसीजन तो मेजॉरिटी से होता है, तो इसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है। तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है एक क्वेश्चन वाजिबी लगता है। थैंक यू वेरी मच, हमने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है शॉर्ट में। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आपके बच्चों का, आपका, तो मैं जो है डिस्कशन में आई विल एंजॉय डिस्कसिंग विद यू। सर सिंह सर, आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहूंगा जी कि थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको ऐसा सोचा है कि सभी बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चंस नोट किए होंगे। इनको हम जो टीम है इसको हम फिल्टर करेंगे, आपके समक्ष पेश करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में। कई लोगों के रेपिटेशन भी होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे सर। ठीक, तो आपकी अनुमति से मैं इस सेशन को आज क्लोज करता हूँ। ठीक है। और आपके समय के लिए सर हम सभी आपका बहुत बहुत हृदय से आपका एक प्रे पॉपुलेशन पर भी एक चैप्टर है, आपका एक सेक्शन है सर, है सर, आप उसको रखेंगे तो भी हम बात करेंगे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।